ایک سندر سے جنگل میں بہت سارے پکشی رہتے تھے۔ وہ سب پکشی محنتی تھے اور آپس میں بہت پیار اور محبت اور شانتی سے رہتے تھے۔ جنگل میں سردیوں کا موسم آ چکا تھا اور برف باری کا موسم بھی آنے ہی والا تھا۔ ارے پکشیوں، اب تو سردیاں بھی آ چکی ہیں۔ آپ سب کو تو پتہ ہے کہ ہمارے جنگل میں کتنی زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اب ہمیں اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنی ہوں گی تاکہ ہم سردیوں میں اپنے گھروں میں آگ جلا سکیں۔ نیلو چڑیا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اب اگر بارش ہو گئی تو ساری لکڑیاں گیلی ہو جائیں گی، پھر ہم سب ان گیلی لکڑیوں سے اپنے گھر میں آگ کیسے جلائیں گے؟ اتنی ٹھنڈ میں تو ہمارے بچے مر جائیں گے۔ ارے پکشیوں، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ ویسے اتنی ساری لکڑیاں جمع کر کے ہم ان کو رکھیں گے کہاں؟ ہمارے گھروں میں تو ویسی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہم سب ان لکڑیوں کو کس جگہ پر رکھیں گے؟ ہاں کالو کوے، یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے۔ میں بھی ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہم اتنی ساری لکڑیوں کو کہاں رکھیں گے۔ ارے پکشیوں، تم چنتا مت کرو، میرے پاس ایک یوجنا ہے۔ ہمارے جنگل کے پاس جو غار ہے، ہم سب اپنی لکڑیاں وہیں رکھیں گے۔ اس سے ہماری لکڑیاں گیلی بھی نہیں ہوں گی اور محفوظ بھی رہیں گی۔ ہم سب پکشیاں مل کر لکڑیاں اکٹھا کر کے وہیں رکھیں گے، پھر روزانہ ہر پکشی تھوڑی تھوڑی لکڑیاں آ کر یہیں سے لے جائے گا اور اپنے گھر میں آگ جلا لے گا۔ اب تم سب پکشی اپنے اپنے گھر جاؤ، کل صبح ہم سب مل کر لکڑیاں ڈھونڈنے چلیں گے۔ ارے نیلو چڑیا، کیا ہی اچھی یوجنا بتائی ہے تم نے۔ ٹھیک ہے نیلو چڑیا، ہم سب مل کر چلیں گے لکڑیاں جمع کرنے۔ اتنا کہہ کر وہ سب پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے۔ کبوتر اپنے گھر اپنے گھونسلے میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے۔ ارے مجھے اب ان سب پکشیوں کی یوجنا کا تو پتہ ہے۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے اتنی ٹھنڈ میں لکڑیاں ڈھونڈنا نہ جانا پڑے اور مجھے اپنے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں بھی مل جائیں۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک یوجنا آتی ہے۔ ارے ٹھیک ہے، اب تو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلی صبح ہو جاتی ہے۔ سبھی پکشیاں اس غار کے پاس لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ چلو پکشیوں، تم سب مختلف دشاؤں میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ سبھی پکشی اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کبوتر وہاں پاس ہی ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرنے لگتا ہے کہ کوئی پکشی لکڑیاں لے کر آئے۔ کچھ سمے بعد مٹھو طوطا کچھ لکڑیاں جمع کر کے لے آتا ہے اور انہیں غار کے اندر رکھنے چلا جاتا ہے۔ طوطا لکڑیاں غار میں رکھنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبوتر جلدی سے غار کے اندر جاتا ہے اور وہ طوطے کی جمع کی ہوئی لکڑیاں اٹھا کر دوبارہ اسی درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ کبوتر دیکھتا ہے کہ نیلو چڑیا آ رہی ہے تو وہ وہاں سے اڑ جاتا ہے اور یہ ناٹک کرتا ہوا کہ یہ لکڑیاں اس نے ڈھونڈی ہے غار کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں رکھ دیتا ہے اور وہ کبوتر اس درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور ہر پکشی کے سامنے ایسے ناٹک کرتا ہے۔ اس طرح 3 دن لگاتار سب پکشی لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور پوری غار کو لکڑیوں سے بھر دیتے ہیں۔ دیکھو پکشیوں، یہ ہم سب کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے غار کو لکڑیوں سے بھر دیا ہے۔ کالو کوے، میں آج سے تمہاری ذمہ داری لگا رہی ہوں کہ تم روزانہ سبھی پکشیوں کو برابر برابر سے لکڑیاں دو گے تاکہ اس طرح سے
सभी पक्षी ठंड से भी बचे रहेंगे और हमारी ठंड का मौसम भी आराम से गुजर जाएगा। ठीक है नीलू चिड़िया, मैं रोज़ाना सभी पक्षियों को बराबर से हिस्सा दूंगा। सब पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा सभी पक्षियों को बराबर लकड़ियां दे देता है। रात को कबूतर अपने घर में बैठा होता है। अरे इतनी सारी लकड़ियों से तो मेरा गुजारा ही नहीं होता। मैं ऐसा करता हूँ, आइंदा रात को जाकर गुफा से अपने लिए बहुत सारी लकड़ियाँ ले आऊँगा। इतना कहकर वे लकड़ियाँ उठाने चला जाता है और कुछ समय बाद बहुत सारी लकड़ियाँ उठाकर ले आता है और अपने घर में रख देता है। इस तरह से कबूतर अपना मामूल बना लेता है और अपने घर में बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेता है। उधर गुफा में लकड़ियाँ काफ़ी कम होती चली गई थी। कालू कौवे, ये गुफा में लकड़ियाँ इतनी कम क्यों हो गई हैं? नीलू चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दिन ब दिन ये लकड़ियाँ इतनी कम क्यों होती जा रही हैं, जबकि मैं तो रोज़ाना सब पक्षियों को थोड़ी थोड़ी ही लकड़ियाँ देता हूँ। नीलू चिड़िया ये बात जाकर मिट्ठू तोते को बताती है। मुझे तो यही लगता है ये कालू कौवा खुद ही चोरी कर रहा है। ये हम सब पक्षियों की आंखों में धूल चौंक रहा है। ये रात को जाकर गुफा से लकड़ियाँ चोरी करके ले जाता होगा। हमें आज रात इसके घर बाहर बैठकर इसके इंतज़ार करेंगे और इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। वे दोनों रात को इसके घर के बाहर बैठकर इसके जाने का इंतज़ार करने लग जाते हैं। रात गुजर जाती है लेकिन कालू कौवा बाहर नहीं आता। मुझे लगता है कालू कौवे को पता चल गया है कि हम इसके घर के बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए वे आज जानबूझकर नहीं गया और मुझे लगता है वे आइंदा भी नहीं जाएगा। हमें ऐसे करते हैं, इससे दो टोक बात करते हैं और कहते हैं कि इसने जहाँ भी लकड़ियाँ छुपाई हुई हैं हमें शराफत से वापसी कर दे। अगले दिन वे दोनों जाकर कालू कौवे से सारी बातें करते हैं। कालू कौवे, मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें ये जिम्मेदारी दी और तुम तो खुद ही चोर निकले। मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। आज से तुम्हें इस गुफा से एक भी लकड़ी नहीं मिलेगी। अरे कालू कौवे, तुमने जहाँ पे लकड़ियाँ छुपाई हुई हैं हमें कल शाम तक अपनी लकड़ियाँ वापसी चाहिए, वरना हम सब पक्षी तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। अरे तुम दोनों मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम मुझे इस जंगल से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। कालू कौवे, इसलिए बोल रहा हूँ कि सुधर जाओ और हमारी लकड़ियाँ वापसी कर दो। एक दिन का वक्त है वो हम तुम्हारे पास, वरना इस जंगल से निकाल दिए जाओगे। वे दोनों इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा बेचारा रो रहा होता है। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो रोज़ाना सब पक्षियों को जितनी लकड़ियाँ देती इसीलिए भी इतनी ही ले आता हूँ। मैंने तो ईमानदारी से अपना काम किया है। ये दोनों मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं अब कहाँ से लकड़ियाँ ढूंढना करूँ, वो भी एक दिन में। कालू कौवा बेचारा उदास बैठा होता है। इसी रात कबूतर अपने घर में आग जलाकर सो जाता है। कबूतर का घर तो लकड़ियों से वैसे ही भरा हुआ होता है। आहिस्ता आहिस्ता आग फैलने लगती है और कबूतर को पता नहीं चलता। कुछ समय बाद पूरा घर को आग लग जाती है। सब पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। अरे ये कबूतर के घर में आग कैसे लगी? हमें किस तरह से आग बुझाना होगा? तोते, ये आग बहुत बड़ी है, हम जितनी भी कोशिश करेंगे ये नहीं बुझेगी। कुछ समय बाद सभी पक्षियाँ मिलकर आग को बुझाने लगते हैं और जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वे कबूतर जलकर राख हो चुका होता है
और इसके घर में बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी होती हैं। मिट्ठू तोता और नीलू चिड़िया को सारी बात की समझ आ जाती है। अच्छा, तो ये कबूतर था जिसको गुफा से लकड़ियाँ चुराई। कबूतर ने ये काम इतनी चालाकी से किया कि हमें पता ही नहीं चल सका और हम बेचारे कालू कौवे पर इल्जाम लगा रहे थे। कबूतर को तो अपने किए की सजा मिल चुकी है। चलो अब चलकर कालू कौवे से माफ़ी मांगते हैं। वे दोनों कालू कौवे के घर चले जाते हैं। कालू कौवा इन्हें देखकर डर जाता है और कहने लगता है, नीलू चिड़िया, मिट्ठू तोते, तुम मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो। मैं कुछ ना कुछ करके लकड़ियाँ जमा कर दूंगा। प्लीज़ मुझे इस जंगल से बाहर मत निकालो। कालू कौवे, अब हमें लकड़ियाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने लकड़ियाँ चुराई थी हमें इसका पता चल गया है और उसे उसकी सज़ा भी मिल गई है। मिट्ठू तोता कालू कौवे को सारी बात बताता है। कालू कौवे, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। हमें गलत फहमी हो गई थी। हमने तुम पर इल्ज़ाम लगाया। कालू कौवे, मुझे भी माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शुक्र है कबूतर की असलियत सबके सामने आ गई, वरना तुम सब तो मुझे इस जंगल से निकाल देते। इसके बाद सब पक्षी शांति से रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।